So hi everyone, I welcome you all to this first session to be organized for the Y21 MTech students. That's the placement session in which your seniors are there to help you out and to tell you that what are the things that are needed to be placed in both core and non-core companies. So we have two speakers from core companies and two speakers from non-core companies. And fortunately, they are my colleagues. So first, I will introduce one by one. So Devanjan Datta, currently placed in NFIL, Naveen Fluorine International Limited. He did his BTech from HIT, Heritage Institute of Technology, Kolkata. Then he joined MTech at IIT Kanpur in 2020, and then he got placed in NICE company NFIL. So this is the core company. After that, I will introduce Isha. Isha did her BTech from IIT Lucknow and then joined MTech at IIT Kanpur, and she got placed in Saint Gobain. These are the two speakers who got placement in core companies. After that, I will introduce Nikhil. Uh, Nikhil did his BTech from IIT Delhi and then joined uh, MTech at here at IIT Kanpur in the same batch, and he got placed in uh, ICICI Bank. And then after that, it's Bhavita. Bhavita did her BTech from HIT, Heritage Institute of Technology, and then she joined IIT Kanpur as a MTech student, and then she got placed in same company, ICICI Bank. So I welcome you all. Uh, I welcome all the speakers, and thanks for uh, joining this session and going to help all these uh, junior students. So yeah, over to you. So I will take the session. I will uh, take one by one. So first I will call Devanjan and tell a few things, and then I will. Hello, Devanjan. Yes, Harsha. Yeah. So can you just uh, start telling about how did you start the preparation? Is it what you already you have planned to do, or you are targeting that it's the NFIL only company? How it goes after the coursework? Actually, I completed all of my coursework in the second semester, in first and the second semester. So first year itself, I didn't have any remaining coursework in the third and fourth semester. So from third semester onwards, I'm preparing for both non-core and core. So for core, I actually brushed up my basic chemical engineering knowledge from the previous, from what I prepared for GATE 2020. I brushed up the basic chemical engineering knowledge, and I selected one or two of my favorite subjects in which I studied very thoroughly and very deeply about the basics and some of the advanced topics, some equipments and stuff. Because in industry, the interviewer actually asks the candidate about the instruments, because they are more interested about what we know about the industry. So that's the thing. And remaining, I applied nearly 40 to 50 companies in the placement season. I got shortlisted in HSBC for the interview in NFIL in the first day itself, and also in TVS. So in the first day I got NFIL, so the remaining were cut off from the placement office, as we have one student, one job policy. And yes, Shank, any other specific questions? Yeah. So what are the cutoff criteria, or what are the prerequisites that they see uh, to shortlist you for the interview? Means I couldn't get the question clear. What are the criteria for shortlisting in NFIL? I don't know about the particular specific criteria for shortlisting, because the interview panel didn't reveal actually what was the exact cutoff criteria for the selection. But they shortlisted around 10 students and waitlisted 5 students, which I came to know after.
I think they didn't like set any specific criteria. Some students like it was very random. There is no specific criteria about shortlisting. It was very random. Can Yeah. you just give some rough criteria? What do you see? How do you think that your shortlisting on something? So if I say based on the CPI, I think they didn't see the MTech CPI so much because some students were there from 7 point also. I was a 9 pointer, so some students were there from 7 point also. But I think they thoroughly went through our BTech CPI. So the majority, like all the students were above 8. So the BTech CPI of all students were above 8. So that kind of can be the criteria, but I'm not sure about it. And there is some criteria regarding some drop out, something like that. Based on the dropouts, I don't know because some students were shortlisted. I don't know. There was no such specific bar or parameter which I came to know earlier or after the interview. So they didn't actually reveal. They shortlisted on various criteria based on their interest on what the student is doing, on what the student has done research in his BTech, in his MTech. So I can't say anything about that. Like there is no specific criteria, as I said. It's the overall CV shortlisting. What? It's the overall CV shortlisting, resume shortlisting, not particularly on a particular basis. Yeah, I don't think there was a particular basis because some students were shortlisted based on their BTech project. Some students are shortlisted based on their current CPI and their BTech CPI, how they performed earlier, how they are performing now, what projects they are what projects they're pursuing at the current moment. So there are various criteria. So every year they change the criteria and they don't reveal how they shortlist actually. And just quickly tell us about the interview, what's happened in the interview, how it went. In the interviewer, there are 4 interviewers. The panel was of 4 people. So it was in Microsoft Teams. So they called us. The HR called me and I joined. And after that, they introduced themselves and they asked me to introduce myself. I introduced and they gradually went into my resume. So the majority part, they actually asked me to run through the resume, asked several questions from my resume itself. So first they asked me to introduce myself. I introduced and then I moved to my internships, to my BTech project and how I did my chemical engineering, what are my favorite subjects. I told them, and they started asking questions on my favorite subjects. So first of all, they asked me some basic questions and then moved on to some advanced questions. I stated that my favorite subject was fluid mechanics and thermodynamics. They asked what is fluid and then moved to some pumps, some head, NPSH calculation, and gradually they moved to mass transfer distillation. Astonishingly, I didn't say mass transfer, but they asked about me from extraction towers and distillation towers, absorption columns itself. So some questions I answered, but what I didn't know, I told them straight at first, like I don't know the answer. I can't say anything about this, and I didn't say any wrong or any misleading information to them. And after that, one person was asking, asking me about some basic stuffs, and then moved on to the BTech project. So he asked me, my BTech project was experimental. So he asked me what was my BTech project on and how I carried out my experiments. So I told them thoroughly about all, like what I have done, what my experiment was on, and what was my objective, what was my goal to carry out the experiments, what was my motivation to do that research. So after that, some part of my research of my BTech was cut off due to the COVID-19. So that was kind of a stop there because they couldn't ask any final inference because I didn't have. And after that, they went to the MTech, but they were not so interested in my MTech project, and this quickly just jumped to the next, some internship. So I had 2 internships. So my first internship was from Star Cement, Star Cement Meghalaya Limited, which was in Shillong. I did in my BTech second year.
So they asked me like the whole process, unit operations in the cement plant, and what is the whole process, and some basic questions about primary crusher and secondary crusher, some basic questions on ball mill. And then they moved on to my second internship. My second internship was on process safety. So it was like a mostly office internship. So it was not an industrial kind of job. So I had to sit in an office and do some technical stuffs on safety. So the one of the senior interviewer actually asked me like a variety of questions on safety. But as you know, we didn't we don't study much about safety in our courses. So it was a very basic knowledge which I knew at that point. So after some point, he started asking some advanced questions and some complex terms which I didn't know about it. And I readily told him that I don't know anything about this. So he was more interested on safety, what I knew about it, because I had a internship on an oil and gas plant. So after that, so one interviewer asked, then the second again went to my favorite subject. Then the whole process went actually 3 times. So um, this went on about 35 minutes or 30 minutes around. And then the HR round, the HR was also in the interview panel, the fourth person. He asked me like some PORs from my resume. So all the interviewers actually didn't ask anything outside of my resume. They all asked me from my resume itself. The fourth person, who was the HR from the interview panel, asked me about my PORs, the current PORs I had in my MTech. So he asked me, why should we choose you? Why should the others choose you as a leader? So it was actually a future leadership program, management trainee, the job profile. So he asked some kind of leadership based questions. What are my strengths and weaknesses? And why will people choose you? And whether I am a like follower or a team or a leader kind of person, or a like a play coordinating with others, or a leading kind of person. So he asked some 2 or 3 some HR type typical HR round questions. You can find it anywhere in the internet, some basic. And then it was done. They asked me like some questions about me. So that was a brief, like it went about 46 or 47 minutes. Okay, so my last question is just conclude Yeah. your experience and just give some tips and tricks to all the juniors. My tips and tricks would be to stay genuine, not to fake your resume, not to mention anything in your resume which you haven't done. Because I've seen like many people writing some things, goofing up some things in their resume which they haven't prepared or haven't done, just to impress the interviewers, which the interviewers can easily identify just by looking at your face. And now it will be more offline. So they will be just they are interviewing thousands of students, so they will be just knowing if you are goofing up, if you are faking it in your resume, and if you haven't done that genuinely. So my number one tip will be just to be genuine. What you have done, just write it in your resume and study your own resume thoroughly. Like you should be knowing your resume from the top to the bottom, and you should be like you should be you should be able to say your resume with your eyes closed from the top to the bottom, without actually without actually having anything in your hand. So like this is this is the major thing, like studying your own resume. The most people forget to study his or her own resume, because like one feels like what you have written, the interviewer will ask something, but each and every point matters in your resume, whether it be a POR or be an internship or be a project or your CPI or your courses. That's the thing. Okay, so I will come to the questions once all done. Okay, so now next time we want to Isha, and so Isha, can you just tell us about from where you have started the preparation and how did you get to this? I also completed all my coursework in second semester. From third semester, I have started revising my all gate notes. So in Saint Gobind come in the second phase of placement in March, I think. Yeah.
in March. So I have ample of time to revise all my GATE notes and BTech project, MTech project. So yeah. So Saint Gobind come only for girls, not for boys this time. So yeah, we have that opportunity. So, how did you prepare for that? Like, So Saint so, Gobind come from did you start preparation for both the poor and non-poor companies, or you are just stick to? I always wanted to be in a core company, so I haven't prepared for non-core. I prepared only for core companies. Yeah. So yeah. So from where you have started that? What are the Uh, things you did and how it helps you in your center minutes? So like I revised my GATE notes only, like specific subjects, heat transfer, mass transfer, CRE, FM, and that's it. Yeah, a mechanical operation also. And for my BTech project, I go through my the report which I have submitted there. And for MTech project, I keep on track with all the things that I have done in my MTech project. So that's it. Nothing more. Okay. So just tell us about your interview experience and what are the questions you have asked. Okay, so this time Saint Gobain come for a research engineer post, that too only for girls. So there were two rounds, like one is technical and one is HR round. So each went for half an hour. In technical round, for technical round, they asked us to prepare a presentation, which is mainly focused on our MTech project. Nothing about BTech, nothing about our training, only about MTech project. So they basically they recruited us for research engineer. So they wanted us to see how we are going to present our MTech project and how have we conducted our MTech thesis and all that. So we prepared a presentation about 10 to 15 slides and comprising all the work that we have done till March. That's it. So they asked about how our MTech project is related to that company, what is the current scope of our topic, and everything related to our MTech project. That's So I forgot to ask the question. So what's the criteria? Is there any particular criteria for shortlisting in that? uh, CGPA, main BTech CG 10, 12th, BTech and MTech CGPA, and our projects, they are main projects only. So These they two are are the main criteria. mostly focused on your MTech projects. Yeah. So They just wanted to see about our research. How are we focused on our research in MTech? The so basic it's focus on particularly like what are the skills you will be going to gain from while doing the research and how it will be help their companies. uh, like uh, for my case, they asked me, is there any correlation between my topic and the company's work area? So I just go through in Google it and how what are the things that are working on it. So I somehow correlate my work to their work also, and what is the current scope of my topic and how this going to help that industry or that Saint Gobain. So these are the minute things which help me a lot in my interview for basically for technical round. So anything. So just to conclude, can you give some tips? Or Uh, like uh, just be calm, confident, and be honest. Like for my case, my project was experimental, and Shipra was another girl who was selected in Saint Gobain. She was her project also was experimental, so we were doing material characterization in like XRD. So they asked me I performed XRD on my own? So I had said no, and Shipra also said no. So like, be honest what you have done so far. If I said yes and Shipra said no, then we will be in a zone. So be honest with whatever you are saying. So but it like, is possible that you can perform your own. You can perform XRT on your own, and Shipra didn't perform on your no, no, own. no, we in PGRL we are not allowed, I think. So just to be honest, that's the one thing. Anything else about while doing the projects, or What? how to prepare the presentation for that? Okay, how to start from basic. Why
you have chosen this topic, what are the current scenario of this topic, and what are the basic studies that have been conducted by other researchers on that topic, and your own results. Like these are the things only. So is there is no some specific things, just No, some no. list. Okay. So okay. Now move on to the Bhavika. So first, the same question I am going to ask, like how did you start prepare your placement preparations, and are you already preparing for core or non-core, or particularly for one of those two? And then what is the shortlisting criteria in that? First of all, why this session is so serious? Like, अरे चिल कर भाई, अभी मतलब लाइक मेरा जो था लाइक मैं शुरू से ही क्लियर थी कि मुझे नॉन कोर में ही जाना है। तो मैं नॉन कोर के लिए बहुत पहले से प्रिपेयर करी थी, जैसा निखिल हंस रहा है क्योंकि हम दोनों ने डिस्कशन करके किया था। तो और दोनों ही अभी यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो शायद बहुत सारा पॉइंट हम दोनों का मैच करेगा। तो क्या है कि मेरा We were on the same track. हाँ हाँ, सेम कंपनी, सेम, इवन हमने डिस्कशन करके स्ट्रेटेजी बनाया था। और जो भी थोड़ा उसने बताया, उसको बीटेक का बहुत सारे एक्सपीरियंस थे। मैंने बीटेक में कोर के लिए किया था, लेकिन अभी एमटेक में मैं नॉन कोर के लिए क्लियर थी कि मुझे नॉन कोर ही जाना है। उसी के लिए one question. So हाँ, why हाँ। you want to be in non-core? Why you want to? क्योंकि कोर से थक चुकी थी, इसीलिए मुझे नॉन कोर के लिए एमटेक लेना था। और फिर अभी तो पता ही है बहुत But लोगों isn't it? Shirang been HR officer. So you are in. So for coming into the non-core, you joined MTech. yeah, That is something very. actually it is because of like in non-core there are more opportunity compared to core companies, because we all are aware कि बहुत कम companies आती है core में and सब उसमें ही लगे हुए हैं। तो अभी हमें अगर निकलना है पहले तो थोड़ा अपॉर्चुनिटी बढ़ाना है। एक तो वो पर्पस था पहला कि मुझे पता था कि कोर की कंपनी बहुत कम आती है, मतलब लाइक आती है बट थोड़ा कम आती है, और नॉन कोर की कंपनीज ज्यादा आती है। तो हमें पहले निकलना था, इसी वजह से मेरा क्लियर था शुरू से कि मुझे नॉन कोर में जाना है। तो मैंने अपना प्रिपरेशन जो स्टार्ट की थी तो वो मैं जनवरी में स्टार्ट की थी, मतलब आफ्टर सेकेंड सेमेस्टर। जो दिसंबर में हमें 10 दिन का कुछ सेमेस्टर ब्रेक मिलता है, तो देन मैंने प्लान किया था उस 10 दिन में कि मुझे करना क्या है, मतलब किस प्रोफाइल के लिए मुझे प्रिपेयर करना है एंड उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं उस ये में की थी एंड 1 जनवरी से मैंने सीरियसली स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन, क्योंकि मैं 0 स्टेट पे थी, मुझे कोडिंग बिल्कुल नहीं आता था एंड मैं सोच रही थी कि मुझे नॉन कोर में जाना है। तो 0 स्टेट से पहले बीटेक का बस सी आता था बीटेक से। एंड you have started your preparation in Jan 2021 from while doing coursework also. yeah, from 1st January itself, Yeah, like from the second semester. after second semester, yeah. After second semester, No, during second semester you have started, is it? in Jan from 1st Jan 2021 it's 21, yeah. So yeah. it's the second semester. देन तो जो इसके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप में थोड़ा मतलब मैं ऐसे बता रही हूँ, नॉट इन फॉर्मल वे। ठीक है, जितना मुझे अभी दिमाग में है कि सबसे पहला जो प्रोसेस होता है कि पहले डिसाइड करना है कि मुझे किस प्रोफाइल के लिए जाना है, क्योंकि नॉन कोर में बहुत सारे प्रोफाइल हैं, जैसे डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, फिर सॉफ्टवेयर, फिर कंसल्टेंट और फाइनेंस, बहुत सारे हैं। तो पहले ये करना है कि मेरी एबिलिटी क्या है एंड मैं क्या कर मतलब क्या प्रिपेयर कर सकते हैं 6 महीने या 3 महीने जो भी हमारे पास टाइम है। तो मैंने सबसे पहले वो सेलेक्ट किया कि कौन सा प्रोफाइल के लिए मुझे जाना है। देन मैं सेलेक्ट की कि मुझे डेटा एनालिटिक्स के लिए जाना है एंड डेटा साइंस के लिए जाना है। उसके बाद मेरा सॉफ्टवेयर था थर्ड स्टेज। जो पहला प्रायोरिटी था वो एनालिटिक्स था, देन साइंस, डेटा साइंस। तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है मैंने पहले वो कलेक्ट किया कि उसके लिए मुझे क्या क्या स्किल्स चाहिए, तो वो प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। देन फिर तीसरा जो स्टेप है वो है सीवी बिल्डिंग, मतलब लाइक जो स्किल्स है वो हमें मतलब अपने आप को खुद को बेचना है
अभी अभी कितने अच्छे से बेचना है वो ठीक है। एंड फोर्थ वन कि अभी इंटरव्यू प्रिपरेशन, तो मेन तो स्किल्स है। तो स्किल्स में क्या क्या मैंने जो किया मैं अपनी बता रही हूँ कि मैं सबसे पहले एक लैंग्वेज मुझे सीखना था। मुझे सी आता था बट सी इज नॉट अ लाइक वेरी इजी लैंग्वेज कि हम कहीं भी, और मेनली क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज पाइथन मांगती है, तो मैंने, और सबसे इजी लैंग्वेज है तो मैंने पाइथन स्टार्ट किया। उसका मैं लगभग, मुझे जनवरी फेब 2 मंथ लगा होगा पाइथन के लिए। देन फिर मैं मशीन लर्निंग सीखना शुरू की। एंड देन फिर उसके बाद मैं थोड़ा एसक्यूएल कर रही थी, फिर डेटा स्ट्रक्चर भी थोड़ा की हूँ। लेकिन डेटा स्ट्रक्चर में कमांड नहीं था तो मैं उसको हटा दी लास्ट टाइम, मतलब जो लास्ट स्टेज पे डेटा स्ट्रक्चर को साइड कर दी थी क्योंकि उस पर मुझे उतना कमांड नहीं आया था। देन मैं उसके बाद हाँ, तो मेरा जनवरी टू जुलाई मैंने स्किल्स डेवलप किया, पाइथन, मशीन लर्निंग, एसक्यूएल एंड डीप लर्निंग मैंने थोड़ा किया था, न्यूरल नेटवर्क वगैरह थोड़ा बहुत, वो मैंने सीवी में नहीं ये किया था। देन मैंने अगस्त में, क्योंकि हमें आ गया था कि अगस्त में, लास्ट अगस्त में हमें सीवी देना है। देन मैंने अगस्त वाला पूरा टाइम सेल्फ प्रोजेक्ट को दिया था कि सेल्फ प्रोजेक्ट मुझे क्या क्या अपने मतलब सीवी में देना है। तो मैंने सेल्फ प्रोजेक्ट पे काम किया एंड देन गिटहब पे उसको लाइक अपलोड करके एंड सब कुछ उस तरह से लाइक सीवी प्रिपरेशन किया पूरा अगस्त। एंड एट द एंड ऑफ अगस्त, शायद 30 या 31 अगस्त कुछ लास्ट डेट था हमारा सीवी अपलोड करने का। देन सीवी अपलोड करके देन सितंबर में मैं उसको मतलब लाइक रिवाइज कर रही थी कि क्योंकि जो फर्स्ट टाइम पढ़ा था उतना दिमाग में नहीं था, तो अगस्त में उस तरह से पढ़ रही थी कि जैसे इंटरव्यू में पूछा जाता है या फिर क्या क्वेश्चंस आते हैं, जैसे प्रैक्टिस, जैसे कुछ कुछ साइट से हैकर रैंक और ग्रीक्स फॉर ग्रीक, वहां से मैं मतलब लाइक क्वेश्चंस करना शुरू की। और सितंबर में कॉलेज जाने के बाद, क्योंकि हम लोग 1 सितंबर को कॉलेज गए थे। देन सितंबर अक्टूबर मैंने पूरा उसमें दिया था। एंड नवंबर में मैंने पूरा सीवी का प्रिंट आउट करके एक एक वर्ड मैंने क्या मेंशन किया है, एक एक वर्ड को मैंने मतलब लाइक फॉलो किया था कि उस वर्ड से क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। या फिर क्योंकि नॉन कोर में बिल्कुल हमारे लिए पहले से वो मतलब लाइक वो नहीं था कि मुझे कुछ आइडिया, मैं कुछ भी उसमें मतलब लाइक आंसर दे सकती हूँ। सो दैट एक एक वर्ड को मैंने देखा था पूरा नवंबर। एंड साथ में जो भी एग्जाम्स चल रहे थे नवंबर में कंपनी की, तो इस तरह से मतलब लाइक की हूँ। अभी ये होता है कि स्किल्स में क्या क्या, जैसे मैंने तो बोला पाइथन, मशीन लर्निंग, एंड मशीन लर्निंग अगर है तो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स के कोर्स होते हैं वो करना पड़ेगा, सिंस डेटा साइंस के लिए ये लाइक रिक्वायरमेंट है। बट डेटा एनालिटिक्स बहुत सारी कंपनी जैसे HSBC, इन्फोटेक, TVS, ये सब प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स थोड़ा नहीं मांगती, बट रहेगा तो शायद वो प्लस पॉइंट होगा। एंड देन और क्या की थी मैं, हाँ इस तरह का ही कुछ की थी। और मैं एक फाइनेंस रिस्क, वो मैं एक्स्ट्रा कुछ की थी क्योंकि मुझे बैंक के लिए वो एक सीवी बनानी थी, तो मैंने एक रिस्क एनालिटिक्स का एक कोर्स किया था यूडेमी पे, इस तरह का। It's done what you have prepared. How was your experience, interview experience? And what are the shortlisting criteria? Shortlisting criteria for non-core companies like simple. It's मतलब CPI तो कुछ होता नहीं है, 6.5 above शायद क्राइटेरिया था। एंड मतलब नॉन कोर के लिए कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है फॉर CPI एंड ऑल दैट। बस वो सीवी के बेसिस पे, सीवी में क्या क्या उसको चाहिए उसके कंपनी के बेसिस पे, और उस तरह से शॉर्टलिस्ट हुआ था। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो सीवी था पूरा वो बैंक के बेसिस पे था, तो जितना भी बैंक था मैं सब में शॉर्टलिस्ट थी। मतलब HSBC में, इन्फोटेक, TVS एंड ये ICICI, तो ये सारे ही बैंक में मेरा शॉर्टलिस्ट मतलब शॉर्टलिस्ट हो चुका था सीवी। एंड ये रिटर्न के लिए तो HSBC, TVS और इन्फोटेक ये सब का निकल गया था। तो आई थिंक मुझे लगता है कि मेरा ज्यादा से ज्यादा टर्म जो था वो बैंक बेसिस पे था मेरे सीवी में, तो ये एक क्राइटेरिया है। तो सीवी जो बनाना है, जैसे मैं 2-3 सीवी बनाना पड़ेगा। जैसे अगर बैंक के लिए है तो एक थोड़ा स्पेसिफिक होनी चाहिए, कुछ कुछ टर्म्स होते हैं बैंक के। जैसे मेरा एक रिस्क एनालिटिक्स जो मैंने कोर्स किया था वो पर्टिकुलरली बैंक के लिए ही होता है, तो शायद वो एक पॉइंट था कि बैंक के लिए मेरा सीवी शॉर्टलिस्ट हो रहा था। एंड
वही और जो हम सीवी बनाते हैं तो मतलब लाइक एक टर्म वो सब हमें मेंशन करना होगा सो दैट कि वो बहुत अच्छे से लाइक वही शॉर्टलिस्ट हो। सीवी बेसिस पे ही होता है ज्यादा, फिर निखिल कुछ But the ऐड question करो। is like you did all these Python and all machine learning things. So isn't it so you can also apply for other companies like software development. Yeah, but for software you will have to know coding कोडिंग के लिए मुझे कोई कमांड नहीं था वैसा। कोडिंग मुझे बहुत ज्यादा नहीं आता था, इसलिए पाइथन आता था। इज अ लैंग्वेज, पाइथन बस उतना ही बेसिक्स आता था जो कि मैं मशीन लर्निंग में यूज करना चाहती थी, बिकॉज मेरा मेन पर्पस था मुझे मशीन लर्निंग करना है, तो उसके लिए मुझे पाइथन सीखना पड़ा, बिकॉज पाइथन लैंग्वेज यूज करके मशीन लर्निंग मैंने But now सीखा। there are some non-code companies for just for machine learning or those systems. Is it where मैंने you may also shortlist or apply if लाइक this जो tells you. हाँ मतलब ऐसे तो और शुरू में तो कुछ ज्यादा कंपनी जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह तो सीवी बेस्ड नहीं थी, वो सबके लिए था, एंड उसका एग्जाम्स थोड़े हाई लेवल के थे। फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट हाँ, प्रोडक्ट मैनेजर बेस्ड था, एंड कुछ कुछ और कंपनीज थी जो कोडिंग पे। HSBC का था, डेटा एनालिस्ट कुछ था, बाकी तो सारे लाइक हाँ वही कोडिंग तो, बेस्ड तो था। HSBC तो बैंक ही है ना। सॉफ्टवेयर रोल ज्यादा हैवी हो जाते हैं, मोस्ट ऑफ द यूजी हाँ पीपल आर आल्सो कॉम्पिटिंग, तो वही, और वो थोड़ा सा जो दिक्कत हो नॉन जाती है। डिपार्टमेंट लाइक केमिकल वगैरह को थोड़ा कम ही देते हैं मतलब भाव, क्योंकि सीएससी वाले के पास है वो सब के लिए, सीएससी आईटी वो सब बैठे हुए हैं यू उनको। हैव टू कॉम्पीट विद हाँ हाँ। यूजी सीएस, यूजी मतलब एमएनसी, यूजी इलेक्ट्रिकल। कुछ रेज्यूमे होते हैं ताबड़फोड़ रेज्यूमे, कुछ होते हम्म। हैं जो compete कर जाते हैं यूजी से, तो हम्म। खूब बहुत ही कम परसेंटेज होते हैं, लेट्स से लेकिन 10%। मोस्ट ऑफ द नॉन सब्सिक्वेंशियल ब्रांचेस लाइक अपनी केमिकल, हाँ मसबे, इनके जो पीजी स्टूडेंट है मतलब दे हैव वेरी लो नैरो विंडो, मतलब बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज यूजी की जनता लाइक सीएस पीपल, हम्म। सीएस हो गया, एमएनसी हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, these people have मतलब और काफी कमांड होती है, तो मुश्किल होता है। अगर किसी को कोडिंग आ रहा है देन तो फिर और भी हाँ मतलब ऑप्शन है। हाँ मेरे लिए था कि मुझे कोडिंग नहीं आता था और मुझे नहीं था कमांड उस टाइम में कि मैं कोई सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए लाइक हो सकता है मेरा, मुझे पता था कि नहीं होगा, उधर उधर रिटर्न ही नहीं निकलेगा, इसलिए मतलब फालतू में उधर ज्यादा दिमाग नहीं लगाया था मैंने, क्योंकि उतना ही टाइम में मुझे ऐसा करना था कि मुझे मिल जाए कुछ अच्छा कंपनी, वैसा था। So what are the questions they asked in written and how did you prepare? Is just the normal preparation you did or any particular specific for the written exam? फॉर रिटन एग्जाम लाइक इन केस ऑफ बैंक, एक तो गेस्टिमेट क्वेश्चंस भी आते हैं जो कि प्रिपरेशन करना पड़ता है, लाइक वो 2 मंथ बिफोर हो जाएगा, जैसे अगर नवंबर में एग्जाम हो रहा है तो वो सितंबर अक्टूबर, हाँ सितंबर अक्टूबर लाइक कुछ 10 क्वेश्चन सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, वो करने पे पैटर्न पता चल जाता है गेस्टिमेट क्वेश्चंस के, तो वो मैंने किया था बैंक में या फिर बहुत सारी नॉन कोर कंपनीज में गेस्टिमेट क्वेश्चंस, केस स्टडी ये सब आता है, एंड पजल्स आते हैं, मैंने पजल्स किए थे प्रेपलिप के, यूट्यूब पे कुछ उसके 20 क्वेश्चंस थे पजल्स के प्रेपलिप का, तो मैंने वही किया था, क्योंकि ये सब में एक पैटर्न होता है थोड़ा, गेस्टिमेट में तो पैटर्न पूरा ही होता है, मतलब लाइक 5-6 क्वेश्चंस करने के बाद समझ आ जाता है कि करना क्या है उस तरह से, और थोड़ा बस नॉलेज चाहिए, एक्सटर्नल नॉलेज, तो वो हो गया। एंड Interview. हाँ, इंटरव्यू के लिए मैंने पूरा नवंबर इंटरव्यू के लिए टाइम दिया था, लाइक वही सीवी प्रिंट आउट करवा के लाइक एक एक वर्ड को मतलब वही देखा था कि मैंने क्या लिखा है, यहाँ से क्या क्वेश्चंस हो सकता है, तो नवंबर में मैंने लाइक यूट्यूब पे जैसे जो मैं फॉर एग्जांपल मैंने प्रोजेक्ट लिखा था, तो उसमें मैंने जो एल्गोरिदम यूज किया था मशीन लर्निंग से, फॉर एग्जांपल मैंने लीनियर रिग्रेशन यूज किया था, तो मैंने उस तरह से यूट्यूब पे या फिर गूगल पे सर्च किया था कि इंटरव्यू क्वेश्चंस फ्रॉम लाइक रिलेटेड टू लीनियर रिग्रेशन, एंड देन सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस मैंने किए थे जो भी पॉपुलर क्वेश्चंस होते हैं, एंड वो सारे क्वेश्चंस पूछे भी गए इंटरव्यू में उस तरह से, लाइक इवन मुझे एंड और भी दूसरे स्टूडेंट को पूछा गया सेम क्वेश्चंस उस तरह के दूसरे कंपनी में भी, तो लाइक वो करने से मतलब एक नोट्स मैंने बनाया था कि मैं जो जो सेल्फ प्रोजेक्ट में दी थी
वो सारे एल्गोरिदम से क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं जो मैं सेल्फ प्रोजेक्ट में, जैसे मैंने 2-3 सेल्फ प्रोजेक्ट दिया था, तो जिसमें रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम था, लीनियर रिग्रेशन ये एल्गोरिदम था, देन उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस हो सकता है, तो उस तरह से मैंने एक नोट्स बनाया था। एंड देन वो लास्ट टाइम मैंने लाइक रिवाइज, जब इंटरव्यू रहता था उसको रिवाइज करती थी उस तरह से। तो सेम क्वेश्चंस वहीं से पूछ रहे थे वो लोग, जो क्वेश्चंस मुझे तो टेक्निकल, मेरा इंटरव्यू मेरा पूरा टेक्निकल बेस्ड हुआ था, लाइक मैंने जो सेल्फ प्रोजेक्ट किया था उसके ऊपर, मेरा क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड था। तो उन्होंने मतलब लाइक वो उस प्रोजेक्ट को समझ रहे थे कि क्या मैं क्या करना चाह रही हूँ एंड क्यों कर रही हूँ, क्या एप्लीकेशंस हैं एंड क्या एल्गोरिदम यूज की हूँ, किस तरह से वर्क कर रहा है। बस वो पूरा एक्सप्लेनेशन, लाइक मेरा पूरा इंटरव्यू इसी बेसिस पे हुआ था, मेरा एचआर इंटरव्यू नहीं हुआ था, मेरा पूरा टेक्निकल बेस्ड ही हुआ था। एंड वो दोनों प्रोजेक्ट में जो 2 सेल्फ प्रोजेक्ट दी थी, वो सारे एल्गोरिदम मशीन लर्निंग से रिलेटेड ही सारे चीज पूछे थे उन्होंने। So मेरा last question, what are the tips and tricks? टिप्स एंड ट्रिक की सबसे पहले टाइमलाइन बनाओ कि मुझे करना कब कब क्या है। लाइक जैसे मेरा टाइमलाइन था, क्योंकि हमारे टाइम में शायद ये सेशन बहुत पहले हुआ था, लाइक जुलाई से पहले ये सेशन हुआ था, तो जो सीनियर्स बताए थे जिस तरह से, तो अभी लाइक जो भी स्किल्स है वो अगस्त तक में खत्म हो जाने चाहिए, जो स्किल्स लेने हैं मुझे लगता है। एंड जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो करना है उसके बाद भी। लेकिन जो अगस्त के बाद, जब जब हमने लाइक सीवी सबमिट हो गया, उसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा स्किल्स, ये नहीं कि मैं सीवी में अभी लिख दे रहे हैं वो स्किल्स में बाद में हो जाएगा, वैसा वाला नहीं हो जाएगा। उसके बाद बस मुझे लगता है कि सेल्फ प्रोजेक्ट ये सब भी देखना चाहिए बस, कि क्या करना है, क्या कैसे आंसर्स होंगे, कैसे क्वेश्चंस होंगे इसके ऊपर। मुझे लगता है स्किल्स तभी खत्म हो जाने चाहिए, जो स्किल्स मतलब लाइक लैंग्वेज या मशीन लर्निंग, जो भी स्किल्स नया हम सीख रहे हैं, या सबके सर्टिफिकेशंस होने चाहिए। लाइक जो भी सीवी में पता ही है कि विदाउट सर्टिफिकेट हम कोई भी प्रोजेक्ट नहीं डाल सकते, प्रोजेक्ट नहीं, सेल्फ प्रोजेक्ट के लिए तो नहीं होता है, मतलब कोर्सेस वगैरह के लिए। तो वो सब। एंड और क्या, निखिल बोलो, मैं तो अभी मेरा स्ट्रक्चर नहीं है। I will ask Nikhil. Okay. हम्म तो ठीक है, बबीता बड़ी मेहनती है भाई। अबे क्या तुम सबके सामने क्यों बेइज्जती कर रहे हो? ठीक है, ओके, लग रहा है वो समझे। नहीं है यार, वो है। Nikhil, just tell us about from where you started. तो यार लाइक जैसे बबीता ने, मतलब बबीता मेरा सेम जर्नी। आफ्टर माय बीटेक आई डिड जॉब इन डेटा एनालिस्ट फ्रॉम Decision Point for hardly for 5 to 4 months. Am I audible now? Yeah. For 4 to 5 months, the role was similar, data analyst, and but I was doing mainly a PPT making work, so I was not very much thrilled by the work. So I decided to do MTech, and I joined IIT Kanpur. And so coming to the specific to the placements only. So right now we are in the July, and we hardly have 5 to 6 months, right, for our placement. So let me know how many of you know data structure, have done any course related to data structure. You can raise your hand. Anybody? Nobody? I think all are preparing for core. आई थिंक सारे कोर के बंदे हैं, तो मतलब Is anybody preparing for non-core? Can they raise your hand? Hey, don't ask that question. You will be demotivated. आई डोंट थिंक लाइक मतलब ऐसा तो ऐसा 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 एक्चुअली ऐसा होना नहीं चाहिए। मतलब मैंने भी नॉन कोर का प्रिपरेशन किया था, PL/SQL से स्टार्ट करके डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटा स्ट्रक्चर सब कुछ किया था, ट्रांजैक्शन सिस्टम तक पढ़ा था मैंने। मतलब ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए, कोर के भरोसे कोर में ही लटका है और कोर का कंपनीज आई नहीं, फिर लास्ट में तो फिर लटक जाओगे। बहुत कम कोर की कंपनी आती है, हार्डली लाइक NFL आई थी, एंड डे 1 में NFL, जॉनसन में थे, RT Industries. RT Industries also, the package CTC was very low and nobody like और वो सब cared to apply. ले भी जाती है 2-1। यार please don't compare the companies. नहीं, core is something नहीं, someone who want to be core. और अच्छा डोमेन है, बट
प्योरली फॉर द फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू कि कोर काफी कम आती है. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द प्लेसमेंट, तो प्लेसमेंट चाहिए, देन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर कोर. अदरवाइज सिनेरियो अच्छा टर्न आउट नहीं The होगा. thing is, you have to prepare for both, and then you decide both how. core and It's non-core. the two way. So I'm assuming that nobody has done any professional course in data structure. So I have asked this question because most of the UG people, like in CS, MNCs and electrical, they have dedicated course related to data structure, and उनके साथ हमें compete करना होता है. So it's become very hard to get a software role if you don't know the knowledge of data structure. तो वो software वाला role हट जाता है. Now coming to the different roles, data analytics, business com analysis, business analysis, ये 3-4 रोल होते हैं. बिजनेस एनालिसिस वगैरह जितने भी रोल होते हैं, दे कैटेगराइज इनटू मैनेजमेंट ट्रेनिंग. लाइक देवांजन का जो है वो मैनेजमेंट ट्रेनी है, तो ही मतलब मोर काइंड ऑफ अ लीडरशिप रोल कंबाइंड विद कोर. और मेरा जो बबीता का है, इट इज आल्सो मैनेजमेंट ट्रेनी कंबाइंड विद नॉन कोर स्किल्स. तो ये सब जो कंपनीज आएगी उन पे हमें फोकस करना है. तो कमिंग टू डेटा एनालिस्ट पार्ट ओनली, हम डेटा साइंटिस्ट, एमएल एक्सपर्ट इस पे बात में आएंगे. कमिंग टू द डेटा साइंस ओनली, सॉरी डेटा एनालिस्ट ओनली. तो इसके लिए मतलब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि तुम्हें किसी भी एक लैंग्वेज पे कमांड होनी चाहिए. मतलब तो किसी भी डेटा ओरिएंटेड लैंग्वेज, वेदर इट्स आर और पाइथन. मतलब पाइथन इज वेरी मच रेलेवेंट इन मार्केट फॉर टू दिस सिनेरियो और द करंट सिनेरियो. तो या पाइथन आती है तो वेल एंड गुड. पाइथन काफी अच्छी लैंग्वेज है. पूरा पाइथन नहीं सीखना हमें, इफ यू नो हाउ टू अप्लाई इफ लूप, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड know some data frames related to Python. वो तुम eventually जब करोगे सीख जाओगे. There are dedicated course on Udemy and Coursera related to Python. तो ये हो गया एक प्रोग्रामिंग, डेटा ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. उसको सीखने के बाद सेकंड आता है, वो है हमारी स्टैटिस्टिक्स कॉन्सेप्ट. स्टैटिस्टिक्स के लिए यूट्यूब पे भर भर के कंटेंट है. There are channel dedicated to statistics. Like there's a guy, Krishna Nayak. Krishna Nayak. Krishna Nayak. There's a playlist of statistics. उनकी पूरी प्लेलिस्ट है स्टैटिस्टिक्स पे, जो कि रिलेवेंट है द स्टैटिस्टिक्स को डेटा एनालिस्ट के लिए सीखने के लिए. और स्टैटिस्टिक्स के बाद आता है, मतलब स्टैटिस्टिक्स हो गई, डेटा ओरिएंटेड काम हो गया, तो यू आर वेल equipped with data knowledge. Now coming to another part, that is SQL. You require SQL for data extraction. So SQL as a query language तुम्हें सीखना होगा. So first thing is Python, second is statistics, then you have to learn some basics of the SQL. तो तुम data roles के लिए perfect हो गए. Now coming to data science, ये data analyst के roles हो गए. मतलब data analyst, pipeline engineer, extraction engineer, cleaning engineer, ये सब उनके लिए हो गए. Now coming to data science and ML engineer. तो ML के लिए मतलब देखो ML की जो प्रोफाइल होती है, they can give CPC from ranging from 8 lakh to 1 crore. तो काम भी डिफरेंट होता है. फॉर 8 लाख उसमें इतना एल्गो डेवलप नहीं करना पड़ेगा. देयर आर ऑलरेडी डेवलप्ड एल्गो जिनको हम यूज करेंगे. सॉरी, तो डेवलप्ड एल्गोज है वो हम यूज करेंगे. वेयरएज कईयों में क्या होता है, खुद एल्गोज बनाने होते हैं. तो डिफरेंस में आएगा कि अगर तुम्हें मशीन लर्निंग करनी है, तो मशीन लर्निंग में तो तुम्हारा बेसिक क्लियर होना चाहिए, मतलब सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग, तो वो सब तुम्हें नेट पे मिल जाएगा. तो वो एमएल्स के रूल्स के लिए हो जाता है. और डेटा साइंस के लिए मतलब डेटा एनालिस्ट जो मैंने बताया, पाइथन, आर, स्टैटिस्टिक्स, उसके अलावा क्या करना है, तुम्हें थोड़ा मैथमेटिक्स पे कमांड लेना है. तो यू आर इक्विप्ड विद डेटा ओरिएंटेड रूल्स. नाउ कमिंग टू माय प्रिपरेशन, मेरे को थोड़ा पाइथन पहले से आता था, तो मतलब उसमें मेरे को दिक्कत नहीं आई थी. तो व्हाट आई डिड, मैंने सीवी जो प्रिपरेशन होता है, जो अगस्त में तुम्हारा सीवी अभी फ्रीज होगा, वो तुम्हारा ब्रेड एंड बटर है लिटरली. तुम्हें सीवी बहुत एकदम रिलीजियस वे में बनानी है. एक एक लाइन जो तुम सीवी की लिखोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी तुम्हारे लिए. जो तुम सीवी में लिखोगे वो ही लिटरली दिसंबर में पढ़ा जाएगा. एंड जो तुम्हारा एचआर होगा वहाँ पे, या जो तुम्हारा जो भी टेक्निकल गाय होगा, वो तुम्हारी सीवी से ही क्वेश्चन पूछेगा. तो सीवी काफी इंपॉर्टेंट है. एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन लाइक फॉलो ऑन दो. मतलब मैं ये कहता हाँ, मतलब मैं ये कहता कि सीवी इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब सीवी जो तुम बनाओगे अभी, जो फ्रीज होगी तुम्हारी अगस्त में, तो उसको तुम्हें काफी सही से बनाना है, क्योंकि उसमें जो भी उसमें तुम अपने पुराने प्रोजेक्ट भी डालोगे. अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट नहीं है, तुम्हें लग रहा है कि यार मैं काफी लेट हो चुका हूँ, मैंने कोई प्रोजेक्ट नहीं करे, ना मुझे पाइथन आती है, मैं कैसे लूंगा जॉब,
तो तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें पाइथन अभी सीखनी स्टार्ट करनी है। तुम्हें अपनी सीवी में प्रोजेक्ट लिखना है ऑन गोइंग करके, मतलब इट इज, मतलब इसमें कोई लूप नहीं है। तुम प्रोजेक्ट लिख सकते हो और उसको ऑन गोइंग डाल सकते हो कि आई विल कंटिन्यू ड्यूरिंग माई थर्ड सेमेस्टर। तो जब तुम उन 3-4 प्रोजेक्ट डालोगे, लेकिन वो सेल्फ प्रोजेक्ट ही जाएंगे, तुम उनको कोर्स प्रोजेक्ट नहीं डाल सकते। With some practice in GSA, are we able to get into the Mani Kumar? Mani Kumar has asked that with some practice in data structure, are we able to get into SDA role? सी पॉइंट वही आता है, मतलब विद सम प्रैक्टिस नहीं होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जनता जिससे तुम कॉम्पीट करोगे उसमें काफी जनता ऐसी होगी। दिस इज फॉर प्लेसमेंट फेस वन में सीएस के बंदे होंगे, इलेक्ट्रिकल के बंदे होंगे, मैथमेटिक्स के बंदे होंगे, कंप्यूटिंग के बंदे होंगे, इवन कोई और ब्रांच है कि इलेक्ट्रिकल पावर है कानपुर में, मतलब मोस्ट ऑफ द सर्क्यूटल ब्रांचेस होंगी जिन्होंने डीएसए पे अच्छी कमांड होती है। तो यू हैव टू कॉम्पीट विद दैट। वो मैंने बिल्कुल साइड कर दिया था। बट इफ यू आर एबल टू डू इट, लाइक अगर कमांड अच्छी है तो इट्स वेल एंड फाइन, लाइक इसमें कोई खराबी नहीं है। इफ यू हैव द कमांड, if you have the command is similar to them, like I won't say similar to them, better to them, then you can compete. There is nothing to worry. So it's all open for everyone. IIT Guwahati में somebody got placed na for 2.1 crore something. मतलब he's from the MTech student ना. I guess so. IIT Guwahati or IIT Madras, I guess, in Uber. गुवाहाटी में ही हुआ। हाँ, right. गुवाहाटी में तो वो सिनेरियो है, लेकिन मतलब वो सिनेरियो काफी वैसा हो जाता है क्योंकि काफी जनता है जो ऑलरेडी कंपटीशन में है। तो इफ यू आर एबल टू पॉप अप, तो इट्स अप टू यू। तो ओके, तो सीवी कहाँ था यार मैं? सीवी बनाना है बहुत अच्छे से। हाँ यार, सीवी बनाना, बिकॉज मैंने क्या किया था, मैंने सीवी बना ली थी। मेरे जितने भी प्रोजेक्ट थे, मेरे कॉलेज के प्रोजेक्ट जो मैंने अपने इंटर्नशिप में करे थे, वो सब डाले थे मैंने, और मेरे सेल्फ प्रोजेक्ट जो मैंने किए थे तो वो सब भी डाले थे। और उसको मैंने रिगरसली, मतलब रिलीजियसली काफी प्रिपेयर किया था। इवन हाइलाइटर ले लेके मैंने प्रिपेयर किया था। इवन बबीता ऑल्सो डिड दैट ना, कि हाइलाइटर लेके पूरा वही तो प्रिंट आउट निकाल के एक एक वर्ड, और फिर उसमें वर्ड भी ऐसे डालने हैं ना, लाइक सारे टेक्निकल टर्म डालने हैं। जैसे जो भी तुम सेल्फ प्रोजेक्ट डाल रहे हो तो वो एक टर्म जो मेन टर्म है उसको वहां पर मेंशन करना है, सो दैट जब वो शॉर्टलिस्ट होगा सीवी, बिकॉज वो शॉर्टलिस्ट ऐसे सीवी देख के नहीं करते ना शॉर्टलिस्ट, लाइक कुछ वर्ड डालते हैं वो, एंड वो वर्ड है कीवर्ड, स्पेसिफिक कीवर्ड्स होंगे, मतलब लाइक लीनियर रिग्रेशन। इफ यू हैव डन एनी डेटा एनालिस्ट वर्क, तो लीनियर रिग्रेशन यूज भी किया होगा, तो काफी कॉमन है। तो ऐसे शब्द होते हैं। तो एचआर क्या करता है, समझ लो कि 500 बंदों का रिज्यूमे आया उनके पास, तो 500 बंदों के रिज्यूमे को 3-4 चीजों से फिल्टर करते हैं। फर्स्ट, सीजीपी क्राइटेरिया, जो मोस्ट ऑफ द नॉन कोर कंपनी का 6 के अराउंड होता है और 7 के अराउंड होता है, तो वो हो जाता है। देन दे फिल्टर आउट बाय यूजिंग सम कीवर्ड्स लाइक लीनियर रिग्रेशन, एमएल, डेटा। तो ये करके वो जो भी शॉर्टलिस्ट होके आती है उनमें से वो सिलेक्ट करते हैं। वो सबके 500 बंदों के रिज्यूमे चेक नहीं करते। तो सीवी मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बैच में कई बंदों ने नहीं किया था, तो इवेंचुअली उसका रिजल्ट एंड अप सही नहीं हुआ था, लेकिन इन दी सेकंड फेज में सबका हो गया था, बिकॉज सेकंड फेज में काफी बंदों ने सीवी पे फोकस किया था। तो तुम लोगों के लिए यही है कि अगर तुम सीवी अभी से सही बनाओगे तो इवेंचुअली तुम्हारे लिए काफी फ्रूटफुल रहेगा। और उन बंदों का जिनका मैं बता रहा था कि जिन्होंने अभी स्टार्ट प्रिपरेशन लेट किया है, मतलब जिनका ना तो पाइथन पे कमांड है, ना एसक्यूएल पे, ना स्टेप्स पे, वो अभी भी स्टार्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पाइथन के कोर्सेज अवेलेबल है यूडेमी पे, कोर्सेरा पे, जो कि 1-2 हफ्ते में हो जाएंगे आराम से। इतना कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ब्रह्म विद्या नहीं है, तुम करोगे तो निकल जाएगा। एंड इवेंचुअली प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है। सेल्फ प्रोजेक्ट भी तुम्हें नेट में मिल जाएंगे। कोर्सेरा के गाइडेड प्रोजेक्ट है, अनगाइडेड प्रोजेक्ट भी है, तो वो भी करोगे तो वो तुम सीवी में डाल सकते हो। तुम्हारा जो एमटेक थीसिस है, अगर किसी का डेटा ओरिएंटेड है तो वेल एंड गुड, क्योंकि मेरा जो थीसिस टॉपिक था वो थोड़ा डेटा ओरिएंटेड था। ग्राउंड मैकेनिक्स में थोड़ा डेटा ओरिएंटेड काम था, तो वो मैंने इस तरह फ्रेम किया था कि वो नॉन कोर का प्रॉपर नॉन कोर रिफ्लेक्ट करे, कि मेरे को कोर पे फोकस नहीं करना था, आई वाज फोकसिंग ऑन नॉन कोर। तो वो उसका रिफ्लेक्ट किया था कि वो प्रॉपर फोकस हो रहा था। तो तुम अपनी एमटेक थीसिस जो भी रहेगी तुम्हारी, उनको इस तरह डालना सीवी में कि वो अगर तुम कोर नॉन कोर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वो नॉन कोर के हिसाब से हो, एनी स्पेसिफिक। और अगर कोई कोर्स प्रोजेक्ट है लाइक रिलेटेड टू कोडिंग, तो वो भी एक एडवांटेज होता है। जैसे मेरा एक कोर्स प्रोजेक्ट था जैन सर के अंडर थर्मोडायनेमिक्स का,
तो उसमें पाइथन से हमारा एक कोर्स प्रोजेक्ट था लाइक पाइथन कोडिंग यूज करके, तो वो तुम्हें अगर मेंशन किए हो तो लाइक वो एक प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि वो कोर्स प्रोजेक्ट ना सेल्फ प्रोजेक्ट से ज्यादा उसका एडवांटेज है कोर्स प्रोजेक्ट और एमटेक प्रोजेक्ट का, मतलब थीसिस का। So same thing with like all the skills while doing coding, like we did computational programming and all. कई That will कोर्स be- डिपार्टमेंट में जो मतलब बेसिक कोडिंग सिखाते हैं, मतलब कई कोर्स है, हिमांशु सर का कोर्स है, एंड ग्राउंड मैकेनिक्स में भी होता है। कई कोर्स ऐसे हैं जो तुम्हें रिलेवेंट कोडिंग सिखा देंगे, ऐसे कोडिंग की कोई दिक्कत नहीं है। एंड वन मोर थिंग, कमिंग टू द इंटरव्यू पार्ट, मेरे पैनल में एक एचआर था और एक एचआर लेडी थी और एक टेक्निकल बंदा था। तो एचआर ने मेरे से 2 क्वेश्चन पूछे थे, व्हाई यू वांट टू जॉइन आईसीआईसीआई एंड आर यू कंफर्टेबल विद पैन इंडिया पोस्टिंग। एंड टेक्निकल बंदे ने मेरी एक इंटर्नशिप थी क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो एक्सचेंज में, तो उसने उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, दैट वाज मेनली रिलेटेड टू बैंकिंग। तो एक बैंकिंग का था, मेरा एक प्रोजेक्ट था कॉलेज का जो बैंकिंग से रिलेटेड था। तो वो 2 चीजें होगी जिसकी वजह से मेरी सीवी मुझे लगता है शॉर्टलिस्ट हुई होगी। तो 2 बैंकिंग के प्रोजेक्ट थे, इसलिए बैंकिंग सेक्टर में जैसे कि मेरा एचएसबीसी में था और आईसीआईसी में शॉर्टलिस्ट था, इन 2 में शॉर्टलिस्ट था मेरा, वो उन्हीं 2 प्रोजेक्ट की वजह से था। बाकी ऐसा मतलब प्रिपरेशन, मतलब ऐसा सीवी में कुछ झूठ मत लिखना, बिकॉज जो रिक्रूटर होता है वो 40 ईयर अबव होता है एंड ही कैन इजीली प्रिडिक्ट कि तुम झूठ बोल रहे हो, तो झूठ मत लिखना, बी ब्लंट ऑनेस्ट। कि मेरा इंटरव्यू ऐसा हुआ था कि मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया था कि आई वाज फ्रॉम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड स्टूडेंट, मतलब 8th क्लास तक आई वाज इन वर्नाक्युलर मीडियम, हिंदी मीडियम बैकग्राउंड स्टूडेंट। तो आई एस्टैब्लिश दैट, तो जो कम्युनिकेशन का जो फ्लॉ होता है वो भी वहीं पे एस्टैब्लिश मतलब हो जाता है। मतलब इफ यू आर वीक इन योर कम्युनिकेशन तो एस्टैब्लिश कर दो, यू डोंट हैव टू रिफ्लेक्ट योर मोर इंग्लिश साइड, तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन को ज्यादा ध्यान देना है, यू हैव टू कन्वे योर मैसेज प्रॉपर्ली रादर देन शोकेसिंग योर इंग्लिश। मतलब दिस इज द इशू होता है बहुत बंदों के साथ कि उनको आता है बट कन्वे नहीं कर पाते। यू हैव टू बी मोर ऑन द कन्वेइंग साइड रादर देन फोकसिंग ऑन योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल। So I want to add one point, like while there is a competition between core and non-core. So I think it's good to prepare for non-core also. Like there are some companies now coming in, like in which some of our colleagues were placed. It's Algo and one more company, Engineer. Engineer, Engineer, in which yeah. the knowledge of both data science is useful, very much useful, and you also want to know the plant design, plant, everything about Yeah. plant, like process Actually, industry. they are And like, process engineer come data analyst too. Yeah, because yeah, they have to work on chemical equipments as well as on data. So it's both Yeah, right, actually. right. because it's the word when everyone wants their plant to be automated and reduce the manpower. So, I guess three guys of our department got so we will placed come here. up with Yeah. that session also. But yeah, it's good to have both the things, and even in research also. Now we are applying machine learning in fluid mechanics. If you know that Steve Brunton is one of the guy from University of Washington who is doing good fluid mechanics with machine learning. So you can see, and so it's always good to have more and more skills, so you can do everything. So most of the students are here for core, right? Na? Very less I students are guess for so. non-core. हाँ, वही दिख रहा है, मतलब ज्यादातर बंदे कोर के लिए. If you have any questions, you can unmute and ask. Shreyans, can you open the floor for the audience right now? Yeah. Guys, you can switch on your videos there. You can switch on your video, So- unmute and ask, or in chat, type And in the ask chat really, box. like, these are just your seniors, nothing more than else. आई थिंक अगर किसी का हायर स्टडी प्लान नहीं है, अगर प्लेसमेंट ही उसका लाइक प्लान है, तो आई थिंक उसको हमेशा साइड बाय साइड नॉन कोर तो रखना ही चाहिए. इट्स माय हाँ. सजेशन. And I think skills is very important. Like in research also, if you want to do PhD or Right. anything, like what I feel is like I'm doing PhD. So Python, some basic language is you must know. That will help or boost your research. Anything. Yeah, C, and basic C, data, Python, basic- C++. it will help basic you in data oriented algorithms also. skills are important. Understanding the algorithms and all those things. So it's the need, like when we in last
last decade when we are saying that maths is too much important. Now data science is too much important. You The cannot trend is leave- changing. Yeah, you cannot leave without coding because now the new education policy is also like that. That from the beginning of fifth class, you are starting doing coding. So And most of the research in our department is also data oriented. Like yeah. require data structures knowledge, data analysis knowledge. I think Yeah, after- machine learning is very important, like in this stage. Handling the data is and analyzing the data is much more important after modeling some fluid mechanics problem and all those things. I have a question particularly to the people who have placed in the core company. Yes. So, what was the procedure in the non-COVID times as we are going to face the time companies come to the offline for the recruitment session? So, do you have any idea the procedures? What you did? The procedure will be somewhat similar to us. Like हमारे समय क्या हुआ था, like it was all online. The process now will be offline. You have to go to the outreach cell and you have to appear for the exams. तो प्रोसेस वही होगा, पहले तो एग्जाम्स होंगे, उसके बाद शॉर्टलिस्ट होगा, उसके बाद दिसंबर में इंटरव्यूज होंगे एंड पहले तो उसके पहले पीपीटी होता है, मतलब प्री प्लेसमेंट टॉक्स देते हैं कंपनीज। तो उसके लिए तो नहीं तो ऑनलाइन होगा, नहीं तो आउटरीच सेल में ऑडिटोरियम है वहां पे टॉक देते हैं, वहां पे मल्टीपल जगह पे टॉक होता है और हॉल 12 में भी आई गेस होता होगा, मुझे उतना पता नहीं है, पर आउटरीच में होता है वो टॉक एंड स्टूडेंट्स हैव टू गो एंड प्रॉपर अटेंडेंस वर टेकन बिफोर कोविड, प्री कोविड एंड उसके बाद जब एग्जाम होता है, एग्जाम भी कंप्यूटर सेंटर जाके देना पड़ता है वहां पे जैसे ऑनलाइन एग्जाम होता है। और उसके बाद जब दिसंबर में अगर शॉर्टलिस्ट होते हो तो उसके बाद हॉल 12 में आई गेस कुछ रूम्स में होते हैं और आउटरीच में भी होता है, लाइक ऑफलाइन प्रॉपर इंटरव्यू जैसे नॉर्मल होता है। प्री कोविड टाइम्स में तो वही हुआ करता था। मतलब followed by the technical, followed by the each other. हाँ, like in my case there was only one round, so there was CV shortlisting and then interview, तो technical में ही HR round वो एक साथ हो गया था, तो it was 45 minutes. But in other companies कुछ companies में पहले टेक्निकल होता है उसके बाद HR होता है, तो इट माइट भी तुम्हारा टेक्निकल के बाद HR का कॉल आए या ना आए, हो सकता है, पर वो सारे ऑफलाइन होंगे, मतलब यू हैव टू गो टू आउटरीच, यू हैव टू स्टे देयर, मतलब come back and forth from hostel to outreach, so it will be different for you guys. PPT सारी अटेंड करना मतलब important. हाँ, I'll rather insist like PPT सारे अटेंड करना, साइड बाय साइड नॉन कोर का बैकअप रखना, क्योंकि कोर में it's very unpredictable. If 30 people are applying for core, might be only 7 or 8 people might get placed in core, or even less than that. So it's very unpredictable. Don't be too much don't rely too much on core companies. और पता भी नहीं है कितनी कंपनीज आएंगी और नहीं आएगा, तो वो भी पता नहीं है, एंड इट डिपेंड्स ऑन आल्सो ऑन योर डीपीसी। सो करंट डीपीसी हुआ है क्या अभी कोई सिलेक्ट? नहीं, अभी तक तो फाइनलाइज नहीं हुआ। हाँ, तो अभी तक तुम्हारा डीपीसी सिलेक्ट नहीं हुआ? अरे कोई आना नहीं चाहता, मैंने जितना सुना था लास्ट टाइम, मतलब nobody is coming. कोई तो जाओ। हाँ, मतलब one or two people I guess applied for DPC role. So DPC is the most important. In my tenure I was the DPC, so I like three of us were DPC. One guy from MS, one me from MTech, and one from dual degree. So we actually contacted 600 500 companies around, and out of that only 50 to I guess 60 companies like replied to our email, like hung up the telephone. Some told that we'll be contacting later but didn't contact. So ऐसा होता है, and it's a responsibility of the DPC to contact the core companies and register them in the portal. And having an MTech DPCC will be beneficial to you guys as well. Like, Exactly. UG वाले अपना देखेंगे,
मतलब तुम लोगों को कोई देखेगा नहीं, मतलब ऐसा हो जाएगा ना अल्टीमेटली, अगर कोई एमटेक का डीपीसी बना नहीं तो वो एसपीओ वाले तो कुछ करेंगे नहीं, वो तो वो एक बंदे को दे देंगे, फिर वो डुअल डिग्री का होगा, फिर he won't be looking too much into MTech. He won't be like, मैं MTech का डीपीसी था तो I was like contacting each and every person, इसका क्या प्रॉब्लम है और सीवी में क्या प्रॉब्लम है. Like I remember I called each and every person, like talked to each and every one of them for about 15-20 minutes, and how their CV can be improved और कैसे क्या प्रॉब्लम होगा. Like बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं जब सीवी बनाते हो, मतलब बहुत लंबा प्रोसेस है सीवी बनाने का. पहले मास्टर रिज्यूमे होता है, उसके बाद अपना 1 पेज रिज्यूमे होता है, तो बहुत सारा पॉइंट्स रहता है कि मास्टर रिज्यूमे में क्या करना चाहिए और 1 पेज में कैसे स्ट्रक्चर होना चाहिए. तो सीवी तुम ऐसे वर्ड में बना सकते हो या गो इनटू like overleaf, and there are beautiful templates there. You can just plug in your data and your CV will be ready. Any questions from the audience? Nothing. I see nothing. हमारे टाइम पे जब हमारा ऐसा सेशन हुआ था, तो वन ऑफ आवर गाय आस्क्ड सीनियर दैट कि माइक्रोसॉफ्ट में प्लेसमेंट लेने के लिए क्या करना होगा. और बहुत लोग हिल गए थे वो सुन के. तो बहुत लोग हिल गए थे. दिस इज द कॉन्फिडेंस, मतलब हमारे बैच में था. हाँ. निखिल किसने पूछा था? I don't want to reveal. Nikhil also doesn't want to reveal. निखिल ने So, तो नहीं पूछा था? नहीं मैंने नहीं, यहाँ पे नहीं है जो पूछा था, पर we won't reveal the name. ठीक है, मतलब you can ask anything, any basic question. No question is silly question, I feel. हाँ, it's a good best opportunity if you हाँ. really are doing. और प्लेसमेंट में मतलब ऑल्दो तुम सब कॉम्पिटिटर्स हो एक दूसरे के, बट मतलब हेल्प हो जाती है एक दूसरे की. मतलब इवेंचुअली बहती गंगा में सब पार होते हैं, तो एक दूसरे की मदद करोगे तो बढ़िया रहेगा. डोंट टेक देम एज अ प्रॉपर कॉम्पिटिटर. सबका भला हो तो बढ़िया है. अपना हो हाँ. गया तो तो उसके उसके लिए- बाद तो और अच्छे से करो भला. लाइक हाँ. शुरू में होता है ना कि जब खुद का नहीं हुआ है तो थोड़ा टेंशन में रहते हैं, खुद का हो जाए तो हाँ. फिर और भी सही से. तो आई होप कि तुम में से कोई एक जीपीसी तो बनेगी एमटेक के लिए, जिससे यार कि कोई क्वेश्चन नहीं है, कुछ हाँ ना तो कुछ तो बोल दो, मतलब it's like It's a silent audience. We are talking to the wall. ऐसा लग रहा है. कोई अनम्यूट करके कोई क्वेश्चन, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं. चलो. अरविल हरिवाना अरे आज हम इंडक्शन लेके आ रहे हैं भाई, हम ज्यादा थके हुए हैं. हमारा 8:30 से शुरू हुआ था, शायद 6:30 तक था. उसके बाद भी हम लोग इतने एनर्जेटिक हैं. सुबह 8:30 से शाम 6:30. और फिर बस लंच भाई, ब्रेक मिला था हाफ एन चलो आवर. ठीक है, इन्हें पकड़ते हैं. एज अ सीनियर यू कैन आस्क. हाँ, ये कर सकते हैं. किसे पकड़ दो सबसे पहले? अरविल को पकड़. अरविल कैमरा ऑन करो. अरविल ये तो मुझे बैठ गई है. अरविल यार तुम कुछ बोल रहे हो. हाँ, You मैं usually कुछ have बोल too रहा much of questions that you are not asking here. हाँ, मतलब मुझे ठीक पता नहीं क्या पूछना चाहिए. You can ask anything. हाँ, यही मतलब मुझे भी यही लग रहा है, बहुत लोगों को पता ही नहीं क्या पूछना चाहिए, पर मतलब जो दिमाग में आ रहा है अभी पूछ लो, क्योंकि कुछ भी. अगर ऐसा लग रहा है कि मेरा ये क्वेश्चंस बहुत सिली सा है, फिर भी पूछो. लाइक क्या होता है ना, लाइक हम लोगों को भी वो फीलिंग था बिफोर प्लेसमेंट, मतलब there were numerous questions, क्या करना है, क्या होता है, we were wondering क्या होगा इसके बाद, like those questions you should ask. And Or you can ask, this is my Yeah. credentials, मेरा होगा कि नहीं होगा. That's the easy question. मतलब आप लोगों को थोड़ा आइडिया था कि वर्क लाइफ कैसा होने वाला है जॉब लगने के बाद. it depends on which job profile you are being placed. तो जैसे तुम अगर ऐसे मैनेजमेंट ट्रेनी, जैसा मेरा जॉब प्रोफाइल है, निखिल का है, बबीता का है, तो ये मैनेजमेंट ट्रेनी का प्रोफाइल बहुत ही डिफरेंट होता है अलग अलग कंपनीज का. उन लोगों का बैंकिंग रिलेटेड होगा, ऑफिस रिलेटेड होगा, मेरा थोड़ा प्लांट रिलेटेड भी हो सकता है, ऑफिस रिलेटेड हो सकता है. ईशा का रिसर्च एसोसिएट रिसर्च इंजीनियर है, तो रिसर्च से काम थोड़ा ज्यादा होगा. तो
It depends on the job profile you are being placed. तो कोई अगर data scientist से place हो रहे हैं तो he will be working computer 24 hours, like not 24 hours in the office time. मतलब अगर ऐसा सिचुएशन आए कि कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, मतलब मेरा क्या? मन जैसा जॉब नहीं मिला, तो हाँ तब क्या करना राइट स्टेप रहता है? कि जॉब में घुस जाना राइट स्टेप रहता है, या फिर और थोड़ी बाकी कंपनीज के लिए वेट करके थोड़ा और देखना? Nikhil, you want to add some? या मुझे सुनाई नहीं दिया इसने जो बोला अभी। सॉरी, मैंने बोला था कि हेलो हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ अब आ हाँ रहा है। हाँ मैं पूछ रहा था कि अगर किसी ने सोच लिया कि ऐसा टाइप का जॉब मेरे को चाहिए, पर नहीं मिला, कुछ और जॉब मिल गया, तो क्या वहीं पे चले जाना ठीक रहेगा, या फिर थोड़ी और वेट करके और कुछ मतलब अलग तरीके से प्रिपेयर करने ऑप्शन सही रहता है? दैट डिपेंड्स कि तुम प्रिपेयर किस लिए कर रहे हो। अगर प्रिपेयरिंग फॉर अ कोर, तो कोर का सिनेरियो थोड़ा कम कंपनीज आती है एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज का जो पैकेज होता है सीपीसी रेंज फ्रॉम 6 लाख टू 9 लाख के अराउंड। मतलब एनएफएल इज एन एक्सेप्शन। तो उसके अलावा जितनी कंपनीज आती है उनका इतना होता है। तो अगर तुम्हें मतलब लग रहा है कि यू आर कंफर्टेबल विद दैट तो जाना चाहिए। मतलब कि कोर का ही तुम प्रिपेयर कर रहे थे क्योंकि कोर की कंपनियां कम आती है, तो उसको छोड़ना मतलब सही बात नहीं होगी। मतलब कि हार्डली कम कंपनियां आती है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नॉन कोर, तो नॉन कोर का सिनेरियो फर्स्ट फेज 1 में भी सही रहता है, फेज 2 में भी सही रहता है। तो उस सेंस में तुम डिसाइड कर सकते हो कि समझो कि डे 2 पे तुम्हें एक ऑफर आया, फॉर एग्जाम्पल 11 लाख पर एनम का ऑफर आया, एंड तुम्हें लगता है कि यू कैन गेट मोर ऑन डे 3 डे 4, तुम ऑप्ट कर सकते हो। बट वही है, रिस्की प्रोपोजिशन है। और रहा फिर जो वर्क काम है, मतलब तुम्हें काम पसंद नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली अगर तुम्हें काम पसंद नहीं आ रहा तो अवॉइड ही करना चाहिए। तो इवेंचुअली तुम्हें फिर मतलब तुम जॉब में जाओगे तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा फिर वो, तो इवेंचुअली तुम जॉब में जाके स्विच ही करोगे। जैसे मेरा था, मैंने डिसीजन पॉइंट ज्वाइन किया था आफ्टर माय ग्रेजुएशन। तो मेरा जो काम था वो डेटा एनालिस्ट का था, बट आई वाज मोर इन्वॉल्व इन पीपीटी रूल। तो मैंने 1 महीना पीपीटी बनाई, फिर मैंने 2 महीना पीपीटी बनाई, फिर मैंने 3 महीना बनाई। ऐसे करके 5 महीने हो गए। तो मतलब कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो इवेंचुअली आई लेफ्ट द कंपनी। तो वो वाला सिनेरियो हो जाएगा। तो इवेंचुअली उसी कंपनी में जाओ जिस कंपनी में तुम्हारा प्रॉपर डेडिकेशन हो, प्रॉपर तुम काम कर सकते हो, क्योंकि ये भी इनिशियल एजेस है। तुम तो हार्डली 23, 24, 27, मतलब ये जो पीरियड है ये जो है 23 से लेकर 27, इसमें ग्रोथ ग्रोथ पीरियड है। तो उसमें तुम किसी अच्छी कंपनी में, जो तुम्हारी टाइम अच्छी कंपनी है और जो तुम जिसमें ग्रोथ कर सकते हो, उसमें जाओगे तो तुम काफी सीखोगे, रादर देन कि तुम किसी लूप में फंस गए। तो ये सही रहेगा कि तुम उसी कंपनी में जाओ जिस कंपनी में तुम्हारा मन हो। It's not always the money. हाँ, पैसों मतलब का वो रिस्की थोड़ा है, मतलब वो कंपनी यार हाँ student मतलब वही। काफी मतलब शाई है या फिर आई हैव अ क्वेश्चन। yes जो yes हाँ मतलब कंपनीज सिलेक्शन के लिए जो टेस्ट रखते हैं उसमें सिर्फ एप्टीट्यूड क्वेश्चंस होता है कि टेक्निकल क्वेश्चंस भी होता है? दिस इज रिगार्डिंग कोर और नॉन कोर? कोर कोर। हाँ तो मैं कोर का बताता हूँ। जैसे मैं एक्सॉन मोबिल के लिए प्रिपेयर किया था पहले, ठीक है। तो मेरा टेस्ट क्लियर नहीं हुआ था पहले ही। और एक्सॉन मोबिल में पहले उन लोगों का जो रोल था, जॉब प्रोफाइल था, वो था डेटा साइंटिस्ट। बट दे आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर एंड thermodynamics, some questions, but majority was from fluid mechanics. So it was all gate level questions, and believe me, 1 or 2 or 3 questions I got, like it was exactly the gate what was like given in the gate 2019 and 20. So it was the similar question, like the same question, just picked it up and placed it in the examination. And other than that, there were some questions from PLSQL and some questions from data structure. So this was all the test, and other than this was the main technical test. And then
आफ्टर दिस देयर वाज एप्टीट्यूड टेस्ट. तो एप्टीट्यूड टेस्ट में तो वो एनालिटिकल आ जाता है, यू कैन इजीली फाइंड इट फ्रॉम गीक्स फॉर गीक्स, और ये सब साइट में बहुत मिल जाएगा, लाइक बहुत सारे, हाँ मतलब हैकर रैंक। एनालिटिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस है. जस्ट टू ऐड ऑन कि मतलब नॉन कोड की जनता के लिए जो शांत रहती है, लेवल कैसे होता है, लाइक गेट लेवल में एप्टी होता है कि थोड़ा कैट लेवल का होता है? ये मैं बोल सकता हूँ थोड़ा मिला के होता है. जस्ट मैं यही बोल सकता हूँ कि अगर तुम गीक्स फॉर गीक्स और ये सब साइट तुम फॉलो कर रहे हो ना ऑनलाइन, और वो सिमिलर लेवल के आते हैं, मतलब वही साइट से क्वेश्चंस उठा के वो लोग देते हैं. प्रेपलीफ, गीक्स फॉर गीक्स, यहाँ पे जो क्वेश्चंस मिलते हैं तुम्हारे एनालिटिकल क्वेश्चंस, वही सारे मतलब उठा के देते हैं मैक्सिमम. और कैट लेवल के कुछ प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि होता है कुछ क्वेश्चंस रहते हैं कैट लेवल के, पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू क्लियर इट आउट. सम बेसिक जितना भी एनालिटिकल तुम प्रैक्टिस करोगे उससे यू कैन इजीली क्लियर इट आउट. ओके. डीआई के क्वेश्चन कर सकते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं तो उससे रिलेटेड डिपेंड्स की रोल कौन सा है. इस कंपनी कोर भी है, अगर रोल है मैनेजमेंट तो उसमें भी मतलब जो एनालिटिक्स आएगा वो मोस्टली डेटा ओरिएंटेड होता है, डीआई ओरिएंटेड. मतलब क्वेश्चंस मुझे जो लगता है ना, क्वेश्चंस मोस्टली इजी होते हैं. टफ कहाँ लगता है? टफ तब लगता है जब तुम्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आती. तो जो होता है ना ऐसे क्वेश्चंस, तुम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस देखोगे, अगर 10 में से अगर 5 क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो रहे हैं, इसका मतलब वो 5 क्वेश्चंस तुम पढ़ के समझ गए. और जो 5 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं उसका प्रोसेस तुम्हें पता है, पर तुम्हारा जो क्वेश्चन है ना वो पढ़ के तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है. तो ये जो दिक्कत है ना, ये बहुत स्टूडेंट के साथ ये दिक्कत होता है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, और वो क्वेश्चन बहुत अनक्लियर होता है. उसके हिसाब से कौन से प्रोसेस से उसको जाना है और क्या करना है, वो क्लैरिटी नहीं रहती एग्जाम के टाइम में. और वो बहुत ना मतलब कम टाइम मिलता है तुमको, 10 या 15 सेकंड 20 सेकंड मिलेंगे सोचने के लिए और उस क्वेश्चन को एग्जीक्यूट करने के लिए. तो इसको मतलब इसका मेजर वही है, इसका रेमेडी वही है. जितना क्वेश्चंस देखोगे ऑनलाइन, जितना क्वेश्चंस बुक में देखोगे, पीडीएफ में पढ़ोगे, go through as much questions as you can, practice as much questions as you can, so that in exams you don't have to think too much, you can easily solve it. और क्वेश्चंस इजी लगे, मोस्टली क्वेश्चन इजी रहते हैं, और ज्यादा जितना क्वेश्चंस तुम देखोगे तुम्हें इजी लगेगा उसके बाद. मतलब मेरे कई पीयर्स ने ये किया था, मतलब ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन जो प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, मतलब जिनका मतलब ऐसा है, मतलब somebody मतलब कईयों का ऐसा होता है कि दे नीड शॉर्ट टाइम तो प्रिपेयर कर लेते हैं, मतलब कईयों को डिफिकल्टीज आ रही है. तो लाइक अभी जुलाई चल रहा है, तो आप डेली एक डीआई का या फिर एक कुछ भी मतलब गीक फॉर गीक्स पे या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके डेली का एक आपको लॉजिकल रीजनिंग क्वांट का क्वेश्चन करना है. एक आपको कोडिंग का क्वेश्चन करना है, एक आपको मैथ का क्वेश्चन करना है, एक क्वांट का करना है, एक लॉजिक रीजनिंग करनी है, एक पजल करनी है. 5 क्वेश्चन करने हैं और ये डेली करना है. तो इवेंचुअली जब नवंबर आएगा तो इतनी कमांड हो जाती है, मतलब कि 10 कंपनियों के टेस्ट हो गए, प्रैक्टिस हो जाता है. जाएंगे. जितना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना इजी हो जाएगा तुम्हारा, और कुछ नहीं. अगर ऐसे सोच रहे हो 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके हो गया मेरा सारा प्रैक्टिस कर लिया, एलआई डीआर जितनी भी थी, तो तुम फंस जाओगे. क्योंकि क्वेश्चन ना ट्विस्ट करके देते हैं, और सेम क्वेश्चन इजी होता है, बेसिक क्वेश्चन ट्विस्ट करके देते हैं, प्रोसेस वही रहता है, समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है बस, और कुछ. और वो स्ट्रेटेजी तुम्हारे अकॉर्डिंग ही रहेगी, मतलब कि तुम्हारा कैसा है तुम्हारा पर्पस, तुम्हारे अकॉर्डिंग रहेगी. Any other questions? सभी को कोर प्लेसमेंट चाहिए. हेलो. Yes. हाँ, डेटा एनालिस्ट के लिए हमें रिटन में डीएसए आना चाहिए, रिटन क्लियर करने के लिए. नहीं, मतलब बहुत कम कंपनियां आती है, मतलब वेरी फ्यू कंपनी होती है जो कि डीएसए मांगती है. मतलब डीएसए में भी ऐसा नहीं कि डेटा स्ट्रक्चर का पूरा ही मांग रही है कि टैग लिखो पूरा, ऐसा नहीं होता. बहुत कम कंपनियां होती है, मतलब हार्डली अगर समझ लो 20 कंपनीज आ रही है तो 1 और 2 कंपनी होगी जो मतलब डीएसए का टेस्ट लेगी, वरना मेनली जो टेस्ट होता है वो बहुत ही बेसिक्स रहता है. मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन, स्टैक क्यू के ऊपर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन रहता है. ओके, मतलब उसके लिए लेकिन पूरा
डीएसए प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। मैं ये बोलूंगा कि पूरा डीएसए प्रिपेयर करना ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा। ओके, मींस मैक्सिमम एसक्यूएल पाइथन से हो जाएगा। हाँ, मैंने कंप्लीटली अवॉइड किया था डीएसए को। कई कंपनियां थी जिनके टेस्ट हमने दिए थे, डीएसए आया था, ऑल दो शॉर्टलिस्ट नहीं आई थी उसमें, लेकिन मैंने पूरा अवॉइड किया था हमको, क्योंकि मेन फोकस तुम्हारा एक जगह होना चाहिए। मतलब इवेंचुअली तभी तुम एक जगह लैंड अप हो पाओगे, वरना केओस हो जाएगा काफी। तो सेम मेरे साथ भी हुआ था। मैंने भी डीएसए शुरू की थी, लेकिन लास्ट टाइम मतलब लाइक टाइम जब हुआ तो लगा कि अभी कमांड नहीं हो पाएगा, तो फिर उसको साइड कर दी थी। वैसा हुआ। मेरा थर्ड सेमेस्टर रहेगा, तुम्हें थर्ड सेमेस्टर में तुम्हारा तीसरा काम भी करना है, मतलब काफी केओस हो जाएगा, तो ज्यादा रायता फैलाने मतलब मे- ज्यादा रायता फैल जाएगा। मेरा हल्का सा अलग था। मतलब मैंने बीटेक में डीएसए पढ़ा था, तो मेरा प्रॉपर डीएसए किया हुआ था अलोंग विद डीबीएमएस एंड ट्रांजैक्शन सिस्टम्स। तो मुझे जस्ट ब्रश अप करना था, पर दिक्कत वही था, टाइम कम था, ब्रश अप करने में भी टाइम लग रहा था। तो मैंने भी उतना नहीं किया था, पर सम टर्मिनोलॉजी आई नो, बुक पढ़ने से समझ में आता था। डीएसए लाइक मैंने प्रॉपर पूरा क्यू में मतलब सारे कमांड्स प्रोग्राम्स मैंने लिखे थे, तो मेरे पास था, पर मैं खुद के प्रोग्राम्स देख के समझ नहीं पा रहा था कि मैं ये कब लिख दिया था मैंने प्रोग्राम्स। मतलब वही था अल्टीमेटली, टाइम नहीं मिला था। टाइम मिलता तो लाइक प्रिपेयर कर सकते थे ऐसे ही। ओके, थैंक यू। और अभी मार्केट मार्केट सिनेरियो अच्छा है, मतलब इस साल तक तो अच्छा है। अगले साल का तो रिसेशन आने का थोड़ा है, रिसेशन आ सकता है अगले साल, लेकिन इस साल का मार्केट सिनेरियो अच्छा है, तो वो प्लेसमेंट से अच्छी हो सकती है। मैं नॉन कोर का बोल रहा हूँ, कोर का मैं कुछ कह नहीं सकता। तो नॉन कोर के लिए मार्केट Core is सिनेरियो हमारे टाइम पे भी सही था और इस बार भी सही है। core is very इवेंचुअली हो सकता है unpredictable. अगले फाइनेंशियल ईयर के बाद से थोड़ा डिक्लाइन होगा, तो इस फाइनेंशियल मतलब वही अप्रैल के बाद। तो अभी तो मार्केट सिनेरियो सही है, तो अभी भी बहती गंगा ही है, तो तुम भी हाथ धो सकते हो। हाथ धो या या बह गंगा जाओ। में, हाँ बह जाओ। बट जो नॉर्मल कंपनीज होती है जिसको कोडिंग नहीं चाहिए, आई थिंक वो डीएसए नहीं पूछती है। मतलब लाइक जैसे बैंक वगैरह को कोडिंग नहीं चाहिए होता है, मतलब जैसे एचएसबीसी या फिर ये सब जो बैंक, हाँ हाँ, बैंक का मेन वैसा मतलब अपना वो था ना, साइकोमेट्रिक टेस्ट था अपने ना। हाँ, हमारा गेस्टिमेट भी हुआ था एक में भी हुआ था, कंपनी का। साइकोमेट्रिक टेस्ट लेंगे वो, मतलब उनमें क्वेश्चंस होंगे कि इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। तो ऐसे 3-4 ऐसे कुछ साइकोमेट्रिक टेस्ट वो लेते हैं, क्योंकि उसमें तुम्हारी लीडरशिप स्किल्स मिलती है कि तुम समझ लो, तुम उसमें बोला है कि आप अकेले काम करना पसंद करते हैं या फिर इन टीम काम करना पसंद करते एज अ हैं। पर्सन कैसे इंटरेक्ट करोगे, वही पर्सनैलिटी टेस्ट वगैरह होते हैं, तो वो मोस्ट ऑफ द बैंक्स लेते हैं। तो साइकोमेट्रिक, और अगर वो इंटरव्यू में पूछ ले कि मतलब आपकी स्किल्स क्या, और आप बोलो लीडरशिप, तो ठीक है, लेकिन लीडरशिप को एक फैक्ट के साथ बताना कि तुमने लाइफ में ऐसा क्या किया है कि तुम्हारे अंदर लीडरशिप है। तो ब्लंट लीडरशिप नहीं बोलना। यू आर कल्याण। और जो प्रोजेक्ट भी लिखो ना सीवी में, तो ऐसे ही लिखना कि ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या प्रोसेस था, क्या आउटपुट था, वैसे ही प्रोजेक्ट को लिखना। वो थोड़ा हाई सही रिलेवेंट होता है। वैसे सीवी मेकिंग की वो तो होगी, वैसे वर्कशॉप तो होगी ना क्या? सीवी मेकिंग के लिए तो होगी इनकी ना वर्कशॉप, सीवी मेकिंग। हाँ। एंड डेटा स्ट्रक्चर के सॉरी श्रेयांक, कंप्लीट योर। No, I was just saying कि यहाँ भी होगा, पीजे के टेक्स्ट में भी होगा एक सेशन just for CBD। कोई और स्पेसिफिक क्वेश्चन है क्या क्या? बबीता, you are saying? नहीं, मैं उसको बोल रही थी कि डेटा स्ट्रक्चर को लेके इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके पहले की चीजें मतलब लाइक अगर क्लियर है तो आई थिंक डेटा स्ट्रक्चर बस कुछ कंपनीज जैसे कुछ शुरू में जो थोड़ी ज्यादा वाली 25 लाख वाली थोड़ी थी, मतलब वो मॉर्गन स्टैनली और हाँ जेपी मॉर्गन एंड चेज। हाँ, इन लोगों को थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए होता है, जिनको थोड़ा कोडिंग भी चाहिए। तो जैसे जो नॉर्मल है उन लोगों को नहीं चाहिए होता है, आई थिंक, मुझे लगता है। क्योंकि मैं 1 या 2 कंपनी में डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चंस की थी, क्योंकि मैंने भी बीटेक में डेटा स्ट्रक्चर की थी, बस सी से की थी, अभी पाइथन से करना था, तो मुझे मतलब बेसिक्स था, जो भी एमसीक्यूज क्वेश्चन कर सकती थी, कोडिंग नहीं आता था। तो 1 या 2 कंपनी में पूछा। I think last year one senior placed in JP Morgan, one MS from MS। हो सकता है, अभी याद नहीं। I don't remember the name, but I know। आईटी मद्रास में हुआ था कोई एमटेक केमिकल इंजीनियरिंग है, यहाँ से मॉर्गन स्टैनली। यहाँ से पता नहीं। ये वाले डुवेल वाले हुए हैं शायद, जेपी नहीं, मॉर्गन। MS में था 2019
हो सकता है, आई डोंट नो, आई एम नॉट मॉर्गन में हाँ, हमारे बैच में शायद डुअल डिग्री वाली वो JP Morgan। कनिष्क का कुछ समथिंग नाम था शायद, बेन एंड गो में तो है ड्यूल डिग्री, बेन एंड गो जेपी में मॉर्गन में हुआ था। मतलब इन कंपनियों में तुम सब भी भरना, ये मतलब जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, बड़े हाँ बड़े हाँ, इन्वेस्टमेंट फर्म्स होते हैं, मैकेंजी हो गया, सब भर देना, सब गोल्डमैन भर सैक हो देना, गया। अप्लाई सबको ही करना है सब भर और देना। दो तीन सेट ऑफ सीवी बनाना है, लाइक जैसे एक तो कोर का बनेगा और एक नॉन कोर का बनेगा, बट नॉन कोर में भी जैसे मैंने 3 सीवी बनाया था, लाइक मुझे डेटा स्ट्रक्चर पे कमांड नहीं था, बट एक सीवी में मैं डेटा स्ट्रक्चर भी लिखी थी, जो कि मैं कभी यूज नहीं की वो सीवी को, बट क्योंकि शुरू में होता है ना सीवी फ्रीज होने के बाद हम कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, तो उस टाइम में लग रहा था कि डेटा स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो इसलिए मैं एक सीवी में डेटा स्ट्रक्चर रखी थी एंड 2 सीवी में डेटा स्ट्रक्चर नहीं रखी थी, तो बाद में मैं यूज नहीं कर पाई थी, बट मेरे कहने का मतलब है कि सेट ऑफ सीवीज बना लेना, क्योंकि 5 सीवीज देना होता है ना शायद मैक्सिमम, तो सो दैट कि बाद में 4, अगर हाँ 5 ना, आई थिंक 5, 4 या 5 कुछ हम्म रहेगा वो, हम्म टीपीसी हम्म विल क्लियर इट। तो अगर सेट ऑफ सीवीज रहेगा तो बाद में तुम्हें अपॉर्चुनिटी रहेगा कि हम इस कंपनी के लिए ये वाले सीवी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर सितंबर में फ्रीज हो गया सीवी तो उसके बाद तुम कोई और सीवी में मतलब लाइक कुछ ऐड नहीं कर सकते, कुछ भी स्किल्स या समथिंग कुछ, या डिलीट नहीं कर सकते, तो उस अकॉर्डिंग ही बनाना है कि एक सीवी वैसा बनाना है जिसमें कि हम पूरे तरह से कॉन्फिडेंट हैं। सीवी 80% ऑफ वर्क सीवी है। हाँ मतलब सीवी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। मैंने 2 महीने या 1.5 महीने शायद बस सीवी में ही दिया, मतलब लाइक वही करना भी वही चाहिए मतलब। और फिर अभी अगर जिस प्रोफाइल के लिए सीवी बना रहे हो किसी सीनियर से, अगर लाइक नॉट हमारे बैच से, अगर इससे भी पहले सीनियर से अगर किसी का कांटेक्ट है तो मांग के सीवी को थोड़ा मतलब लाइक वहां से देख सीख के सीवी बनाना चाहिए, लाइक ऐसे नहीं कि खुद से, मतलब अभी तो जुलाई है, लाइक जुलाई एंड से यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर सीवी, क्योंकि अगस्त और सितंबर में फ्रीज हो जाएगा, लाइक 1-1.5 महीना मिलेगा, उसके बाद तो सारे कंपनीज का टेस्ट चालू हो जाएगी, पीपीटी एंड टेस्ट। अगस्त और लास्ट सीवी टाइप सीनियर, मतलब तुम में कोई सीनियर जानकार हो तो सीवी सीनियर को ही भेजना, मतलब रादर देन अपने ग्रुप में सर्कुलेट करने के। हाँ ग्रुप में सर्कुलेट मत करना, सीधे सीनियर को ही देना इवैल्यूएशन। ग्रुप पे सर्कुलेट तो कभी मत करना। हाँ कोई मतलब ऐसा है कि सब कॉम्पिटिटर हैं तुम्हारे ग्रुप में, ऐसा है कि तुम्हारा कोई क्लोज फ्रेंड है, तुम रोज बात करते हो एंड यू कैन एक्सचेंज योर सीवी एंड म्यूचुअली वेरीफाइड, पर ऐसा नहीं है कि मैं मतलब ग्रुप पे डाल दिया वेरीफाइड एंड टेल मी कमेंट्स आ रहे हैं, वैसा नहीं करना चाहिए मतलब। आई थिंक वैसा कोई नहीं करता है, मतलब थोड़ा तो हर किसी हाँ को, मतलब हाँ वही। एंड नहीं, सब मैंने लोग अभी एकदम तो देखा है। सब सीनियर्स हैं, तो यू आर इंट्रोड्यूस्ड टू हम, तो यू कैन डायरेक्टली आस्क देम, कांटेक्ट देम, व्हाट्सएप देम। मैंने तो अपना काफी शांत है। मैंने तो अपना सीवी लाइक ईशा सीनियर को काफी भेजा शांत था है, बहुत। ईशा है क्या? है ईसा। ईशा ईशा है, सही बोल रहे हो। यार लगता है इन्हें इनका हो गया इन बच्चों का। और कुछ सवाल? मैं तो अपना सीवी लाइक आई टेल यू, मैंने तो अपना सीवी लाइक बनाना शुरू कर दिया था पहले से, मेरे पास एक स्ट्रक्चर था तो मैं वो फॉलो करके सीवी बनाया था, और जो सीवी था मैंने अपने सीनियर को भेजा था, 2-3 सीनियर को मैंने भेजा था, उसके बाद कुछ मैं अपने बैचमेट को भेजा था, आई गेस 1 या 2 को, और उसके बाद तो लाइक 5 और 6 पर्सन्स को मैंने अपना सीवी भेजा था। जो 1 पेज वाला सीवी होता है, रेज्यूमे होता है, वो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रेज्यूमे, एंड बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल है, यू कैन पिक एनीवन डिसेंट। और अभी वैसे तुम लोग सीवी मेकिंग शुरू कर दोगे, अगस्त में फ्रीज हो जाएगी। मैं लेकिन थोड़ा उसमें पॉइंट पे आता हूँ कि तुम्हारा जो एमटेक थीसिस है अभी, कि तुम लोगों का तो थीसिस ही होगा, प्रोजेक्ट तो होगा नहीं। तो तुम्हारा जो एमटेक थीसिस है, तुम्हारा थीसिस है, तो अभी से काम करना शुरू कर देना। मैं बता रहा हूँ, नवंबर आते आते अगर तुमने काम मतलब पहले काम नहीं किया होगा ना, नवंबर आते आते मतलब बहुत दिक्कत हो जाएगी। मतलब प्रोफेसर बोलेगा ये करो, तुमने ले रखे होगे 36 क्रेडिट या 27 क्रेडिट, जो भी रखे होगे थीसिस के, वो भी जाएंगे, प्लेसमेंट भी जाएगा। तो पहले ही कर लेना भी काम, मतलब अगस्त और सितंबर में ही काम सही से पेस में रखना, जैसे कि नवंबर में टाइम मिले तुम्हें।
हमारे इसलिए साथ इसलिए तो बता ऐसा रहा हुआ क्योंकि था दिक्कत कि हो जाती है। हमारे साथ तो बोलो कोविड बोलो। था ना, तो हम लोग घर पे थे। हाँ तुम वही है, नहीं फिर भी ये लोग अभी कैंपस में भी है तो काम वाम बंदा इन नहीं लोगों कर का सकता हो ना। रहा होगा, ये नहीं, इन लोगों का हो रहा होगा क्योंकि अभी तो लैब जाना ही है ना। हमारा था कि हमें मतलब सितंबर से जाना था, तो थोड़ा हमारा वैसा हम यार वो लोग तो कर लिए। यही लोग बताएंगे, ये लोग सिलेक्ट ही नहीं कर सकते। तुम्हारा सही चल और रहा है क्या सब एमटेक? सब सब अरे यार पेपर निकाल बताओ। रहे हैं क्या सब? बताओ कैसा चल रहा है इम्पैक्ट का प्रोजेक्ट वगैरह सब कुछ? सारा मेरे रिसर्च ये बैच कर रहा है क्या? अरे किसी को भी पकड़ के पूछो तो भी बताएंगे। अरे हम लोग का प्रोजेक्ट का तो कोई इंट्रोडक्शन दिए ही नहीं। आई वर्कड अंडर वी शंकर, निखिल आई थिंक वर्कड अंडर अनुराग त्रिपाठी, ईशा वर्ल्ड बबीता हाँ राजपाल सर, बबीता अंडर जैन। हाँ। तो पकड़ो पकड़ो। मेरे लैब वाले तो सब बहुत अच्छा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इतना फीडबैक है मुझे, मतलब मेरे जो लैब के जूनियर्स हैं ओके। कौन है सबका। लैब के जूनियर? कौन है जूनियर? चलो तुम ही बता दो, बाकी से इंट्रोड्यूस करा दो अपने जूनियर्स को। अरे मतलब मेरे लैब में क्योंकि यहाँ पे सबका होंगे तो ना वो अच्छा चल। जूनियर्स आई थिंक, सो उन्हें इंट्रोड्यूस करा दो बाकी। अभी वो लोग सोच रहे हैं हमें फंसा रही है ये। अरे मेरे पंटर आए ही नहीं यार, कहते तेजस और मीत कौन? त्रिपाठी की टोली। ये मुझे तो दिख गई प्रियंका सिन्हा, फिर ये एंड्रिला, मेरे ये तो मेरे कॉलेज की भी है, एंड रोशनी, You can ask them to switch on their camera and ये लोग सब वो हैं। इन लोगों का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा चल रहा है, जैन सर बहुत खुश हैं। ठीक है पता नहीं। बट मतलब मैं बोल रहा था कि सबसे इंट्रोड्यूस करा था। अच्छा यार तुम लोग क्या मतलब डरा और रहे हैं क्या हम कुछ तुम्हें? और कुछ क्वेश्चंस अरे यार, कुछ भी है प्रियंका, लाइक हमने तो यू विल हमारे टाइम बी द, तुम लोग ही बैठने वाले हो और 1-1.5 महीने के बाद तुम लोग का शुरू हो जाएगा एग्जाम्स वगैरह। चलो पकड़ते हैं। प्रियंका प्रियंका है प्रियंका सिन्हा। चलो यार बंदे जा रहे हैं, बंदे बोर हो रहे हैं। अभी पकड़ोगे तो और बोर होंगे। हाँ, तो ठीक यार है, बेस्ट ऑफ लक यार तुम लोगों को, आई प्लेसमेंट थिंक आने वाला है। every question is बाकी clear. I think we हंसी have मजाक होता answered all रहेगा। of the questions. एंड यू कैन मेल और व्हाट्सएप, ये सब अवेलेबल रहते हैं easily। तुम किसी भी हाँ सीनियर को एनी टाइम मेल कर सकते हो या मतलब इस चीज के लिए अवेलेबल रहते ही हैं। क्योंकि हमारे सीनियर से भी हमारी मदद करिए तो हमारा भी बनता है फर्ज मदद करना। हाँ, मेरे पास भी कुछ रिसोर्सेस अवेलेबल है। लाइक एक मुझे डॉक्यूमेंट मिला था, मैं सर्च कर रहा था बिफोर माय प्लेसमेंट। इट वाज लाइक इंटरव्यू क्वेश्चंस, प्रोफेशनल क्वेश्चंस फॉर केमिकल, लाइक इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर केमिकल प्रोफेशनल्स। एक पीडीएफ ही है वो 60-70 पेज का, दैट इज बेस्ड ओनली फॉर केमिकल इंजीनियर्स, और वो इंटरव्यू क्वेश्चन क्या पूछते हैं उसके ऊपर है। तो आई विल शेयर विद। हाँ क्या? क्या एक ब्लॉग लिख सकते हो क्या? तो मतलब जो ब्लॉग? ब्लॉग ब्लॉग मींस लाइक क्या, पर्टिकुलरली किसके? फॉर प्लेसमेंट या ठीक है, आई विल ट्राई, सो टाइम आगे मिले भी तो। लिख देना भाई, कैबिनेट में डाल देना। हाँ ठीक है चलो। सेमिनार्स में वी कैन शेयर। सो मतलब जैसे 4 में देवंजन और साथ में किसी और किसी के साथ जो भी एनएफआई में प्लेस्ड हुए उनके साथ, तो वो सारे पॉइंट्स आ जाएंगे उसमें एंड दैट विल बी हेल्पफुल एज अ डॉक्यूमेंट कि व्हाट आर द लाइक क्वेरपल लिखते हैं ना सब लोग, वैसे ही उस तरह का ब्लॉग अगर लिख सकते हैं। आई थिंक सब लोग उससे मैं रिक्वेस्ट करता यार ये बंदा कौन है? ए नाम से, ए नाम से। वो अरे यार होगा भाग गया भाई। तो भाग्य। देवंजन हाँ ब्लॉग एक ब्लॉग ठीक है, पर्टिकुलरली। आई विल ट्राई। मतलब बाकी सारे भी लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि मैं ही सिर्फ लिख रहा हूँ। हाँ मतलब यू कैन इनिशिएट एंड यू कैन डू वेरी हाँ ठीक है, यू आर ओके। गुड इन इनिशिएटिंग। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत ठीक नहीं। है तो कोर का एक और निखिल नॉन कोर का हाँ और सबको ले लेना। टेम्पलेट, तो एक काम करियो, टेम्पलेट भेज दियो मुझे डेबो को, जिस फॉर्मेट में होगा हम लिख के तुझे नहीं भेज कोई देंगे। पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है जो कैबिनेट का एक मतलब ऐसे देवंजन खुद ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। देवंजन कर बताएगा। लेंगे अरे अपन वो बात तो करते हैं। कोई भी टेम्पलेट उठा के हाँ लिख सकते टेम्पलेट हैं, डजंट उसमें कुछ मैटर। मतलब जस्ट फॉर डॉक्यूमेंटेशन। सो
मतलब इजी रहेगा पढ़ना। अभी यहाँ से किसी को कुछ नहीं पूछना या फिर नहीं पसंद करना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लाइक यू कैन आस्क क्वेश्चंस प्राइवेटली, कोई दिक्कत नहीं है, Okay, मैसेज डाल के। formally wrap up कर दो session. या जस्ट ओके दैट ठीक है, अभी वो रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो।